کے خیریت سے ہوں گے. طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی. آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کی ہراسگی سے متعلق از خود نوٹس معاملے کی سماعت کا حال احوال ہے. دراصل آج چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس معاملے پر سماعت کی اور پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ان کے صدور جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ عدلیہ کی تضحیک یا عدلیہ چیف جسٹس سے متعلق جو ہے وہ تنقید کرنے والے صحافیوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں. جے آئی ٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, تو اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے. تو اس پر جو ہے وہ جو مین اس میں درخواست گزار تھے وہ تھے قیوم صدیقی. اب یہ معاملہ سمجھنے کی بات ہے 2021 کا یہ بیسیکلی معاملہ تھا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی. اس وقت جب فسطائیت تحریک انصاف کے عروج پر تھی اور ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا تھا جو ہے وہ صحافیوں کو دبانے کے لیے, فریڈم آف پریس کو اور فریڈم آف ایکسپریشن کو جو ہے کرٹیل کرنے کے لیے. تو اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس اس وقت قاضی فیاض عیسیٰ چیف جسٹس نہیں تھے, یہ ایک بینچ میں بیٹھے سماعت کر رہے تھے, 2 رکنی بینچ تھا. تو اس وقت پریس ایسوسی ایشن کی جانب سے قیوم صدیقی جو ہے وہ پیش ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک تحریری درخواست دی تھی اور جس میں کہا تھا کہ صحافیوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت قاضی فیاض عیسیٰ نے اس پر نوٹس لیا تھا اور نوٹس لے کر اس معاملے پر جواب بھی طلب کیے تھے. لیکن پھر اس وقت چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال, اور عمر عطا بندیال نے قاضی فیاض عیسیٰ کے اس نوٹس کو جو ہے وہ اس پر ایک 5 رکنی لارجر بینچ بنایا اور یہ ایک ڈکلیئر کر دیا کہ قاضی فیاض عیسیٰ سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں, انڈیویجول جج ہیں, اور وہ از خود نوٹس لینے کا ان کا اختیار نہیں ہے, بلکہ از خود نوٹس لینے کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا ہے. اور چونکہ اس وقت چیف جسٹس بننا تھا عمر عطا بندیال نے, تو انہوں نے ماسٹر آف دی روسٹر کا ایک انوینشن کی. ماسٹر آف دی روسٹر جو پاکستان کے آئین میں نہیں ہے, پاکستان کی جوڈیشری میں جس کا کہیں ذکر نہیں ہے, تو اس کی انوینشن کر کے ماسٹر آف روسٹر کا ٹائٹل دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جو ہے از خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے, کوئی جج انڈیویجولی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا. تو یوں جو ہے وہ یہ جو صحافیوں کو ہراساں کرنے والا معاملہ ہے یہ کھاتے چلا گیا, مٹی پاؤ والی کہانی آ گئی, اس پہ مٹی ڈال دی گئی. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر معاملہ کچھ اس سمت چلا گیا کہ اس پہ جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کا ایک بینچ بیٹھا تھا. اس نے جو ہے وہ لیپا تاپی کرنے کی کوشش کی, لیکن صحافیوں نے پھر اس میں انٹرسٹ ہی نہیں دکھائی, درخواستیں ہی واپس لے لی, تو اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ سرد خانے کی نظر ہو گیا تھا. پھر یہ ہوتا ہے کہ انتخابی نشان بلہ والا جو معاملہ تھا اس پہ اب قاضی فیاض عیسیٰ چیف جسٹس بن جاتے ہیں, اور پھر یہ انتخابی نشان بلہ پی ٹی آئی کا معاملہ آتا ہے, تو اس پہ وہ ایک بولڈ سا آرڈر کرتے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق جو آرڈر کیا جاتا ہے اس پر ہمارے بہت سارے رپورٹرز اور بہت سارے میڈیا اور خاص کر سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ تنقید کرتے ہیں. اب تنقید کرتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کچھ ایسے بھی تھے جو تضحیک بھی کر رہے تھے, جو شاید کہیں نہ کہیں ذاتیات کا استعمال کر رہے تھے, اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور عدلیہ کو ریڈیکول کرنے کی کوشش کی, عدلیہ یعنی کہ اس ادارے کے خلاف نازیبا زبان بھی استعمال کی. پھر حکومت وقت نے یہ سوچا, یعنی یہ نگران حکومت نے سیکرٹری داخلہ کے ذریعے جے آئی ٹی بنا دی گئی. اب جے آئی ٹی نے جو ہے وہ اس پورے معاملے کو سکین کیا, پورے سوشل میڈیا کو سکین کیا, یوٹیوب کو, فیس بک کو, ٹویٹر کو, ایکس کو, اور جو ہے انسٹاگرام کو, ٹک ٹاک کو, سب کو سکین کرنے کے بعد کوئی 550 کے قریب لگ بھگ اکاؤنٹ ڈیٹیکٹ ہوئے. ہزاروں اس میں ٹویٹ سے, میٹیریل سے, کنٹینٹس ایسا تھا جو شاید جوڈیشری یا ریاست کے خلاف تھا. پھر اس معاملے کو آگے مزید فلٹر کیا گیا اور 161 پھر فلٹر کرتے کرتے جو ہے تقریباً 47 اور پھر شاید 37
लोगों के नाम इसमें मंजर आम पे आए और उनको FIA की जानिब से नोटिस दिया गया। तो जब FIA की जानिब से नोटिस मिला तो उसके बाद हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इन दोनों ने मिल बैठ के एक किस्म की स्टेटमेंट जो है वो जारी की और उस स्टेटमेंट में ये कहा कि आज़ादी इजहार का ये मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। फिर यूँ होता है कि दोनों एसोसिएशंस के, दोनों सहाफ़ती तंजीमों के सदूर जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा से हफ्ते के रोज़ जाके उनकी मुलाकात होती है। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम इस मामले को जो है वो ओपन कोर्ट में लगा देते हैं और फिर वो मामला जिस पे FIA की हरासमेंट वाला मामला जो पेंडिंग पड़ा था उमर अता बंदियाल के दौर का, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। तो उसमें इनको भी नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और आज फिर इसकी समाअत होती है। आज जब समाअत हुई तो सहाफ़ियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया। तो चीफ जस्टिस ने बरमला ये कहा कि हम तनकीद से नहीं घबराते, तनकीद होनी चाहिए, तनकीद से जो है वो हमारी इस्लाह होती है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि तनकीद की आड़ में तज़हीक नहीं होनी चाहिए। तनकीद को हम बरमला के जो है वो उसको वेलकम करते हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने तौर पे कि मुझे तो तनकीद से असर नहीं पड़ता, मुझे इन चीज़ों से असर नहीं पड़ता, बल्कि उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, मेरे फ़ैसलों पे तनकीद कर रहे होते हैं, मैं उनसे जो है वो इस्लाह लेता हूँ। लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह कहा कि तनकीद की आड़ में तज़हीक जो है उससे इदारे कमज़ोर होते हैं, इदारों पे हर्फ आता है, वो नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक और बात भी जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से की गई। उन्होंने ये कहा कि आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर और व्यूअरशिप लेने के लिए जो है वो गालियां दे दी जाती हैं और व्यूअरशिप ली जाती है। तो ये बात किसी हद तक यूँ भी दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमने देखा यहाँ पे ऑब्ज़र्व भी किया कि वो इस वजह से भी है कि लोग जो हैं वो चूँकि ये एक बात हकीकत है कि ख़ासकर वो दोस्त जो सोशल मीडिया पे, मैं सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और उसमें जितनी आप तनकीद करते हो, जितनी आप चीज़ें करते हो, उतनी आपकी व्यूअरशिप मिलती है। और ये भी एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की जो व्यूअरशिप है वो सबसे ज़्यादा है। यानी अगर आप कंटेंट तहरीक इंसाफ की हिमायत में पैदा करते हो तो आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है और आपको डॉलर्स मिलते हैं, आपका कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो पूरा होता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी लाइन लेने पे मजबूर हैं और ये हकीकत है कि जो व्यूअरशिप है वो कंटेंट क्रिएटर्स को फोर्स करती है, मजबूर करती है कि वो अगर अपने कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा करना चाहते हैं तो वो उनके हक़ में वीडियोस बनाएं और यही कुछ जो है वो हो रहा है। तो इसी वजह से इस लय में, इस राव में जो है बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी हैं वो भी शायद इसी वजह से मजबूर हो जाते हैं और वो उस तनकीद को या उस ऐसी तज़हीक को जो है वो वतीरा उन्होंने बनाया हुआ है महज इस वजह से कि उनकी व्यूअरशिप जो है वो बढ़े, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट पूरा हो, डॉलर्स आएँ। और इवन के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ये कहने भी मजबूर हो गए कि हमने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे ऐसे थंबनेल बनाए हुए होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कुछ हो गया है और जब वीडियो को देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये बातें बड़ी बरमला हुई और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्होंने मुझ पे तनकीद की है मैं नहीं चाहता कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़। बहरहाल फिर प्रेस एसोसिएशन के दोनों सदूर को कहा कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल बैठें, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें और फिर देखें कोई लाया अमल निकलता है तो वो ज़रूर निकालें। उसके बाद इन दोनों तंजीमों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने अटॉर्नी जनरल से डिस्कशन भी की, लेकिन मामला जो है वो शायद अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इस मामले पर कल फिर से समाअत होगी। अब देखते हैं कि कल मामलात किस स्टेज पे जाते हैं। लेकिन ये एक चीज़ हकीकत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ेपन का मुजाहरा भी किया और उन्हें बरमला जो उन पे नाक़दीन हैं, जो उन पे तनकीद करते हैं, उनको वाज़ेह जवाब भी दिया कि आपकी तनकीद का जो है वो मेरे ऊपर जो है इतना असर नहीं होता, बल्कि जो आप तनकीद करते मैं तो उससे इस्लाह लेता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कोई गलत किया है तो मुझ पर तनकीद हो रही है और अगर कुछ गलत किया भी होता है तो मैं उसकी इस्लाह करता हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि तनकीद की आड़ में
तज़हीक की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब FIA के पास जो केसेस हैं, जो नोटिस हैं, उसमें एक चीज़ साबित हो रही है कि FIA को अब शायद कहीं ना कहीं ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट है, ये जो ट्वीट्स हैं, ये जो चीज़ें पैदा की गई हैं, कि आया इसमें तनकीद है या तज़हीक है। तो अगर तनकीद है, जिन दोस्तों ने तनकीद की है और फ़ार द गुडविल की है, इदारे के लिए की है, तो वो उनकी तो जान खुलासी हो जाएगी। लेकिन वो दोस्त जो ज़ातियात पे आ गए, जिन्होंने गालियाँ तक दी, जिन्होंने जो है इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, शायद उनके ख़िलाफ़ मसाइल हूँ। तो अब बहरहाल देखते हैं कि ये मामला किस सिमत जाता है। लेकिन एक बात है कि जब आज़ादी इज़हार की जो है वो आज़ादी है, आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो फिर आपके ऊपर वही आइन जो आपको आज़ादी इज़हार की जो है वो आज़ादी दे रहा है, लिबर्टी दे रहा है, वही आप पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद करता है, वो आप पे कुछ कदगने भी लगाता है। वो ज़िम्मेदारियाँ आपको फुलफ़िल करनी चाहिए ताकि जो है वो इस तरह की सूरत हाल भी जो है वो पैदा ना हो। एक ज़िम्मेदार शहरी, ज़िम्मेदार सहाफ़ी होने का सबूत देना चाहिए। देखें, कमर्शियल इंटरेस्ट हूँ, यूट्यूब व्यूवरशिप, इन सारी चीज़ों से मुबर्रा होना चाहिए। बात यह है कि मैंने अनफॉर्चुनेटली इस दौर में अब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सहाफ़ी जिनके हम कॉलम पढ़ा करते थे और जो हमारे आइडियल होते थे, उनको जब देखता हूँ कि यार वो जो है सिर्फ़ इस फेक न्यूज़ और इस चक्कर में और इस व्यूवरशिप के चक्कर में और इस यूट्यूब के चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी पेशा वराना जो उनकी ज़िम्मेदारियां थीं उनमें भी बददियानतियाँ बरत रहे हैं। ये तो हक़ाइक़ है। तो बहरहाल अब इस पे मामला अभी आगे भी चलेगा, देखते हैं ये सिचुएशन कैसे किस सूरत और किस सिमत जाती है। तो मज़ीद कुछ होगा तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।